Hello dear students, welcome to my channel Maths with Harpal Singh। +2 क्लास ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਵੈਕਟਰਸ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ having magnitude as well as direction. Any physical quantity having magnitude as well as direction is called vector quantity. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਐਨੀ ਮੀਨਸ। ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਉਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਐਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਵਿੰਗ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਸਕੇਲਰ ਹੈਵਿੰਗ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਓਨਲੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਥ ਆ 2 ਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਂਥ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 2 ਮੀਟਰਸ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਰੋ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਫਰੋਮ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਟੂ ਵੈਸਟ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੈਂਥ ਇਹਦੀ 2 ਮੀਟਰ ਹੀ, ਪਰ 2 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਟੂਵਾਰਡਸ ਨਾਰਥ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਫਿਰ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ A to B। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ A to B, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, this is the shortest distance between A and B,
तो ये जिहड़ा स्ट्रेट पाथ है सानू डायरैक्शन एक फिक्स दे देगा A to B। ये बन जाती है डिसप्लेसमेंट बाकी सारे रस्ते जिहड़े आ ये डिस्टेंस ने। So distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Displacement is what? The shortest distance between two points. दो पॉइंटां दे विच दा सब तो छोटा रास्ता, the shortest distance, वो बन गया साडे कोल displacement। हुण इस तो अगे जिवें चलदे हैं आपां डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये साडे कोल हो जाती है स्पीड। सो जे डिस्टेंस स्केलर आ तो टाइम तो स्केलर ही आ। डिस्टेंस ओवर स्पीड ये बन जानी साडे कोल स्केलर क्वांटिटी। तो जे डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम करांगे ये बन जाती है वेलोसिटी, ये बन जानी साडे कोल वैक्टर क्वांटिटी। हुण स्पीड ते वेलोसिटी, वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड फाइंड करो, स्पीड हुंदी है। जिवें मान लो मैं अपनी बाइक स्टार्ट की, मैं घरों निकलिया, रस्ते इधर इधर फॉलो करता गया, अमृतसर पहुंच गया, तो मैं 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके गया। 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, मैग्नीट्यूड 50 किलोमीटर बन गया। हुण जे मैं कोई इदां दा वे होवे, मान लो बाय प्लेन, इत्थे जा तो नहीं सकते, पर फॉर एग्जाम्पल जे आपां डायरैक्ट वेज कोई फॉलो करते हैं, जिवें इत्थे मेरा पिंड, इत्थे अमृतसर साडा स्कूल, आपां डायरैक्ट इत्थे पहुंच जाइए तो रस्ता स्ट्रेट पाथ फॉलो कर लिया, फिर जिहड़ा मैं रास्ता फॉलो करके आवांगा तो फिर मेरी स्पीड नहीं गिनी जाएगी, फिर मैं की करूँगा वेलोसिटी, इन्नी वेलोसिटी के नाल मैं चलिया। वेलोसिटी की होएगी सिंपली डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम। सो स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, एज डिस्टेंस इज scalar quantity, so speed is also scalar quantity. Velocity is related to displacement, so velocity is a vector quantity as displacement is vector quantity। ये सिंपल जिहा साडे कोल स्केलर ते वैक्टर दे विच दा डिफरेंस हो जांदा। हुण सिंपल जे क्वेश्चन एक नंबर दे विच पुछ सकदे, कोई क्वांटिटी दे देणगे ते कह देणगे कि दसो बई ये क्वांटिटी स्केलर आ या वैक्टर आ, जिवें 10 kg वेट, तो हुण भार जिहड़ा है वो स्केलर होएगा या वैक्टर होएगा। इदां दे क्वेश्चन टाइम ड्यूरेशन बारे पुछ लैणगे। हुण आपां वैक्टर नूं होर थोड़ा जिहा समझना, जिवें मैं ए वैक्टर लिखिया, इदा लिख देना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इदा मैं एक वैक्टर नूं शो करया करांगा। i j k ए की ने, इनू वैक्टर नूं इदा लिखदे क्यों आ, उहदे वास्ते सानू समझना पएगा 3 डायमेंशनस में, x axis, y axis and this is the z axis which is perpendicular to both x axis and y axis। क्योंकि साडे कोल बोर्ड जिहड़ा है वो एक प्लेन है, सो सानू तीजी एक्सिस प्लेन के उपर इदां शो करनी पैंदी, अदरवाइज ये बार नूं हुंदी है परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस। इहदा मतलब आ कि x एक्सिस वाल नूं मैं चलिया 2 यूनिट, y एक्सिस वाल नूं फिर मैं इत्थों फॉलो किया तो गया 3 यूनिट्स तक, इतने 2 यूनिट्स इधर नूं आके 3 यूनिट्स इधर आया, मतलब 3 यूनिट y एक्सिस ते गया, ते बाहर नूं निकलिया 4 यूनिट बाहर नूं। हुण बाहर इत्थे इधर नूं यूज करना पेगा 4 यूनिट, इत्थे जे आपां शो करना है इदां शो करते हैं।
एक्स एक्सिस वाल नूं 2 यूनिट, वाई वाल नूं 3 ते जेड एक्सिस वाल नूं 4 यूनिट ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ट्रैवल करते हैं तो यह बन जाता साढ़े कोल 2i कैप। हुण i कैप इज द यूनिट वैक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, j कैप इज द यूनिट वैक्टर अलोंग y axis and k cap is the unit vector along z axis। इनू होर थोड़ा जिहा ब्रीफली समझना होए तो एक क्यूबॉइड आपां लवांगे, ये बना ली एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस ते इधर जेड एक्सिस। ये ओरिजिन जिहदे कोऑर्डिनेट्स हमेशा आप 0 0 0 लैके चलांगे। ये एक्स एक्सिस, जे एक्स एक्सिस इथों लैके इथों तक ये डिस्टेंस ए आ, वाई एक्सिस वाल बी आ, जेड एक्सिस ए सी आ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। फिर इस पॉइंट दे कोऑर्डिनेट्स जे फाइंड करने होण वो की बन जाने, ये देखो इधर एक्स वाल नूं सिर्फ एक्स एक्सिस के उपर ही डिस्टेंस ट्रैवल किया तो ये बन गए A0 0। इधर सिर्फ वाई एक्सिस वाल गए 0 B 0, इधर कला जेड एक्सिस वाल 0 0 C। हुण इत्थे आए ये एक प्लेन बनता पाया, बेस जिवें बनता इधर एक्स एक्सिस वाल डिस्टेंस होया ते जेड वाल। जे इधर की गल करो एक्स वाल जाके वाई वाल नूं गए, इधर की कोऑर्डिनेट्स बन गए A B 0, किहड़ा एक्स ते वाई प्लेन बनता पाया। इधर वाई एंड जेड, वाई ते जेड, वाई वाल नूं आपां गए ही B, जेड वाल नूं गए C ते एक्स वाल नूं 0। ए इधर एक्स ते जेड प्लेन बनता पाया, इसदा मतलब वाई वाली टर्म 0 हो जाएगी A0 C। हुण ये जिहड़ा पॉइंट है ना, इनू चंगी तरह वेखांगे तो इमेजिन करोगे ये पॉइंट स्पेस दे विच बन जाता। इहदे कोऑर्डिनेट की बन गए A B C, तीनों ही कोऑर्डिनेट्स इहदे आ जाने, एक्स एक्सिस का भी, वाई एक्सिस का भी ते जेड एक्सिस का भी। जे कभी भी कोई कहे स्पेस दे विच कोई पॉइंट शो करो तो फिर आपां इदां शो कर सकते हैं। हुण मैं दस्सिया ही वैक्टर 2i कैप 3j कैप 4k कैप का की मतलब है। जे नैगेटिव होए तो एक्स का नैगेटिव आपां जानते हैं इधर बन जाना, वाई का नैगेटिव इहदे थल्ले नूं, ते जेड का जे जेड बाहर नूं आ ते उहदा नैगेटिव डायरैक्शन इनवर्स हो जाएगी साडे कोल। हुण कोई भी वैक्टर होवे उहदे दो पार्ट्स ने, एक वैक्टर का मैगनीट्यूड ते एक उहदी डायरैक्शन। ये यूनिट वैक्टर ये आ जाना साडे कोल मैगनीट्यूड। ते पहला भी मैं स्टार्टिंग दे विच यही दस्सिया कि वैक्टर इज व्हाट एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैगनीट्यूड एज वेल एज डायरैक्शन। यूनिट वैक्टर ने सिर्फ डायरैक्शन दसनी है, जिवें पेन है ना, तो पेन की टिप सिर्फ एरो ही आ कि आपां इस डायरैक्शन वाल नूं, जिवें एक साडे कोल तीर होवे ना, तो तीर की टिप सिर्फ सानू डायरैक्शन दसदी भी इधरों तीर चलना है। उसकी लेंथ ब्रैथ कुछ मेजर नहीं रखती, उसकी लेंथ आप 1 यूनिट ही लैके चलिया करांगे। हुण ये जिहड़े आई जे के ये जिवें यूनिट वैक्टर ने, इदां साडे कोल वैक्टर के दो पार्ट्स बन जाते, एक उहदा मैगनीट्यूड ते एक डायरैक्शन। हुण मैगनीट्यूड फाइंड किवें करिया करना, मान लो ए वैक्टर कोई दिता है ना, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਆਫ a1 ਸਕੁਏਅਰ ਪਲਸ a2 ਸਕੁਏਅਰ ਪਲਸ a3 ਸਕੁਏਅਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਹਿਣ find the unit vector, find unit vector along this vector, along a vector or parallel to a vector, find unit vector along a vector or parallel to a vector, ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾ ਕਰੇਗਾ a cap। a cap ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ, a ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਅਲੋਂਗ ਦੈਟ ਵੈਕਟਰ। ਮਤਲਬ a ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, a1 i ਕੈਪ ਪਲਸ a2 j ਕੈਪ ਪਲਸ a3 k ਕੈਪ। ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ, यानी कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ए की आ जाना साडे कोल यूनिट वैक्टर अलोंग द गिवन वैक्टर और पैरेलल टू क्यों गया, उसी डायरेक्शन च है, डायरेक्शन तो सेम ही है। तो जो वैक्टर की डायरेक्शन दो वैक्टर की सेम होए तो इहदा मतलब यूनिट वैक्टर उस वैक्टर दे ते जां उहदे पैरेलल वैक्टर दे एक ही आना, सेम ही आएगा। हुण एग्जाम्पल के तौर पर जिवें ए वैक्टर दिता है, इहदा मैगनीट्यूड फाइंड करना होए तो कितना आ जाना, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 16 29 स्क्वायर रूट। तो ये क्या है, वैक्टर यूनिट वैक्टर along या पैरेलल टू a वैक्टर, वो की बन जाना साडे कोल a कैप। ते a कैप दा आंसर की आना, a वैक्टर अपॉन मैगनीट्यूड ऑफ वैक्टर। ते वैक्टर साडे कोल ही 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन आ जाएगा स्क्वायर रूट 29। ये साडा आंसर आ जाना। इस तो बाद आपां करना है प्रोडक्ट एडिशन। देखो एडिशन और सबट्रैक्शन ये ज़्यादा दसन की लोड़ नहीं है। जे एडिशन की गल की जाए, ए वैक्टर जेकर साडे कोल a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ते बी वैक्टर होर कोई है साडे कोल b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो आप a वैक्टर प्लस b वैक्टर करना है तो डायरेक्ट a1 प्लस b1 i कैप, a2 प्लस b2 j कैप, a3 प्लस b3 k कैप। जे माइनस करना है इतने माइनस आ जाना, मतलब आई वाले कंपोनेंट्स आई वाले कंपोनेंट ऐड कर देने, जे वाले जे वाले ऐड कर देने, तो के वाले ऐड कर देवांगे। सिंपल एडिशन तो इदां होंदी। जिहड़ा प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये दो तरीके दा हुंदा। एक हुंदा स्केलर प्रोडक्ट ते एक हुंदा वैक्टर प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, वैक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। हुण स्केलर प्रोडक्ट नूं आपां लिखा करेंगे ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, ते क्रॉस प्रोडक्ट नूं लिखना ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। दोनों केसिस ए वैक्टर इधर नूं जे मान लीए इधर बी वैक्टर मान लो, इन्हां दे विच दा जे एंगल होवे थीटा, इक्को जगह तो जिहड़े वैक्टर स्टार्ट होंदे हैं इन्हां नूं बोलदे को इनिशियल वैक्टर। हुण इन्हां दी जदों करनी डॉट प्रोडक्ट तां ओह आ जानी है ए वैक्टर मैगनीट्यूड बी वैक्टर मैगनीट्यूड कॉज ऑफ थीटा।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ A ਵੈਕਟਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ B ਵੈਕਟਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ sin ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ n ਕੈਪ where n cap is perpendicular to both A vector and B vector। जिवें ये दो वैक्टर ने ना डॉट वास्ते तो कुछ नहीं लिखना, क्रॉस वास्ते एक वैक्टर n कैप इदा होएगा जिहड़ा इन्हां दोनों दे ही परपेंडिकुलर होएगा। A वैक्टर दे भी एक्चुअल दे विच इदा होएगा बाहर नूं इन्हां दोनों वैक्टर्स दे परपेंडिकुलर थर्ड प्लेन दे विच आ जाना उन्हें थर्ड एक्सिस दे विच। हुण जे डॉट प्रोडक्ट आ ते इनू सिंपली मैं ए बी कॉस थीटा भी लिख सकदा, इनू ए बी साइन थीटा नाल एन कैप वेयर एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। पहला आपां करांगे डॉट प्रोडक्ट फिर सीखांगे क्रॉस प्रोडक्ट। हुण किसी वैक्टर का मैगनीट्यूड सिंपल नंबर के नाल डिनोट कर दिता जाता, जिवें इत्थे मैं ए वैक्टर मैगनीट्यूड बी वैक्टर इनू मैं सिंपल ए बी कॉस थीटा भी लिख सकदा। हुण एग्जाम्पल के तौर पर ए वैक्टर दिता है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, बी वैक्टर दिता है साडे कोल माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। आपां फाइंड करना a डॉट b यानी कि 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप डॉट i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। हुण डॉट प्रोडक्ट एक तो डायरैक्ट कर सकते हैं जो सानू वैल्यूज दित्तियां होण वैक्टर्स दियां, एक इस फॉर्मूले दे नाल करनी है। डायरैक्ट जो करांगे 2i ने सिंपल i दे नाल मल्टीप्लाई होना, उहदे लई पहला देखो i डॉट i इहदा आंसर क्या आएगा i डॉट i दा मैगनीट्यूड 1 j दा मैगनीट्यूड क्योंकि यूनिट वैक्टर ने ये हमेशा याद रखना आई जे ते के यूनिट वैक्टर ने इन्हां दे मैगनीट्यूड हमेशा 1 होंदे आ। द मैगनीट्यूड ऑफ यूनिट वैक्टर जिन्हों यूनिट वैक्टर बोल दिता उसका मैगनीट्यूड हमेशा 1 ते कॉज ऑफ इहो फार्मूला ए दा मैगनीट्यूड बी दा आई दा मैगनीट्यूड फिर आई दा मैगनीट्यूड कॉज ऑफ। हुण आई कोई भी साडे कोल होए इदां इधर नूं इक्को डायरैक्शन दे विच एंगल कितना है ना 0 ते cos 0 कितना हुंदा 1। इहदा मतलब i डॉट i होवे या j डॉट इनू नोट पा के लिख लेना नोट नंबर 1 i डॉट i और j डॉट j और k डॉट k तिन्हां दे आंसर हमेशा होया करनगे 1। नोट 2 i डॉट j या j डॉट k या k डॉट i तिन्हां दे आंसर होंगे 0। चेक कर लीए i डॉट j फाइंड करना होवे ते ओह क्या है ना 1 इंटू cos i ते j दे विच दा एंगल कितना होंदा 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री इज 0। सो i डॉट j फिर इन्हां दा j डॉट i कर लो या k डॉट j कर लो या i डॉट k ये भी हमेशा 0 होंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये गल याद रखनी है a डॉट b का आंसर जो आएगा वही b डॉट a का आंसर आता है हमेशा। हुण इन्हां नूं मल्टीप्लाई करना 2i इंटू i डॉट i 1 हो गया तो आंसर कितना आ गया 2। 2i देखो इनू पहला इहदे नाल फिर 2i नू मल्टीप्लाई किया 3j दे नाल ते i डॉट j 0 हो जाना, इसका मतलब ए टर्म सैकेंड वाली 0, i डॉट k भी 0
बचया कि जे डॉट ए माइनस जे डॉट 3j, ਇਹਦਾ आंसर कितना आ जाना -3, तो इधरों के वाली के दे नाल सिर्फ मल्टीप्लाई करनी -6, ये आंसर आ जाना साडा। ਇਹਦਾ मतलब जेकर ये कितना आ गया साडे कोल -7, ਇਹਦਾ मतलब जे A वैक्टर दिता है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप एंड B वैक्टर इज B1 i कैप B2 j कैप प्लस B3 k कैप। ਆਪਾਂ A डॉट B फाइंड करना होवे तो सीधा ही आंसर क्या है A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3। फैक्टर हट गए A1 मतलब I वाले कंपोनेंट I दे नाल मल्टीप्लाई J वाले J दे नाल ते K वाले कंपोनेंट K दे नाल मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपली। हुण इदां करके मेरा आंसर आ गया -7। क्वेश्चन दे विच कह सकते हैं given A vector and B vector are two vectors, ये सानू कोई दो वेक्टर दे देन, find the angle between them, find angle between A vector and B vector, डॉट प्रोडक्ट आपां फाइंड कर ली। जे A वैक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करिए तो वो क्या आना स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 स्क्वायर इज +1 3 स्क्वायर इज 9 स्क्वायर रूट 14। B वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज I का कंपोनेंट 1 है 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2 स्क्वायर करोगे तो +4 बन जाना, ये भी कितना आ गया √14। हुण आपां हुणे फार्मूला कीता ही A डॉट B, ये वाला इहदे कोल हुंदा AB cos थीटा, इधर A डॉट B का आंसर कितना आया -7। चलो A dot we know that A dot B is equals to A magnitude B magnitude into cos of theta, ये थीटा ਆਪਾਂ फाइंड करना है। A dot B का आंसर -7 है, ਇਹਦਾ आंसर 14 रूट 14 cos थीटा, ਇਹਦਾ मतलब cos थीटा किहदे कोल आ गया -7 अपॉन √14 ਨੂੰ √14 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲਾ 14 ਆ ਜਾਣਾ -1 अपॉन 2 cos थीटा -1/2, cos थीटा की वैल्यू 1/2 साढ़े कोल किन्ने ते हुंदी है 60 डिग्री, हाँ 60 π/6 ते क्वाड्रेंट किहड़े च नेगेटिव होएगा cos सैकेंड दे विच, थर्ड दे विच भी हुंदा। चलो आपां उस डिटेल दे विच जाण दी अजे लोड़ नहीं, ते थीटा किहदे कोल आया ना सैकेंड क्वाड्रेंट च लिखिए π/6 तो जे थर्ड क्वाड्रेंट च आंसर देना है, थर्ड च भी कॉस नेगेटिव हुंदा वो च आना π + π/6, ਇਹਦਾ मतलब इत्थे आ जाना 5 π/6, इत्थे कितना आ जाना 7 π/6। दा मतलब A वैक्टर ते B वैक्टर दे विच एंगल या तो 5 π/6 होना ते या 7 π/6 होवेगा। ये आपां कर ली डॉट प्रोडक्ट या कह लीए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स। हुण जो डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो फिर क्वेश्चन एक आ जाता फाइंड स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A vector on B vector, projection of A vector on B vector, तो इहदा सीधा सीधा आंसर होया करेगा A vector on B vector, इहदा आंसर होया ना A dot B over magnitude of B। A vector दी B vector दे ऊपर प्रोजेक्शन वेखनी होवे ना
मान लो इधर बी वैक्टर आ, इधर ए वैक्टर आ, इहदी प्रोजैक्शन इदां ए वेखनी है इथों तक, तो वह आंसर की बनेगा ए डॉट। जे क्या होंदा प्रोजैक्शन ऑफ बी वैक्टर ऑन ए वैक्टर, जिथे ऑन लगा जे ए वैक्टर ऑन च हुंदा ते थल्ले आ जाना ही ए वैक्टर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सिर्फ ये क्वेश्चन करने आपां, साडे कोल दिता है सम फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वैक्टर, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वैक्टर। ये श्योर शॉर्ट दे मैं क्वेश्चन करवावांगा इंपॉर्टेंट जेडे सारे। ए वैक्टर दिता है सानू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। बी वैक्टर 6i कैप, सॉरी i कैप कला, बी वैक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। पहला a वैक्टर डॉट b वैक्टर फाइंड करो, मल्टीप्लाई i वाले i वाले दे नाल होणगे, 2 × 1 is 2 प्लस 3 × 2 6 प्लस 2 × 1 ये भी 2 आ जाना, तो कितना हो गया 10। हुण b वैक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, वो भी फाइंड कर लेने स्क्वायर रूट इथों I the component 1 the square 1 2 square is 4 1 root 6 projection of a vector on b vector in the a vector dot b vector over magnitude of b vector यानी कि 10 upon root 6 10 upon root 6। इनू बड़ी हद रैशनलाइज कर लो, 10 रूट 6 ओवर 6 ते 5 अपॉन 3 5 रूट 6 अपॉन 3 ये साडा आंसर आ जाना। हुण इस तो पहले जिहड़े सम आ, फाइंड द सम ऑफ वैक्टर्स। सम करना सिंपल दस दिता, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स यह भी दस दिता, फिर फाइंड द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स सिंपल वैक्टर देते हैं, उन्होंने डॉट प्रोडक्ट एक बार फॉर्मूले दे नाल कर लैनी, एक बार डायरैक्ट कर लैनी है, तो एंगल लभ जाया करनगे। जां डायरैक्ट भी जे करना है ना, ए वैक्टर बी वैक्टर इहदी डॉट प्रोडक्ट किहदे इक्वल है ए बी कॉस थीटा। कभी भी दो वैक्टर देते होण तो आपां थीटा फाइंड करना, कॉस थीटा किहदे इक्वल है ना ए डॉट बी ओवर ए बी सिंपल का मतलब की है इन्हां दे मैग्नीट्यूड ये फाइंड कर लेने। जिवें इहो ही क्वेश्चन होए ए डॉट बी ते आपां फाइंड कर लिया ना, ए दा मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो कितना हो जाना स्क्वायर रूट 4 प्लस 9 प्लस 4 अंडर रूट 17 ते कॉस थीटा फिर किहदे इक्वल आ जाना ए डॉट बी दा आंसर कितना है 10 ओवर ए मैग्नीट्यूड रूट 17 बी मैग्नीट्यूड रूट 6 10 ओवर 102। ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਚਲੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾ ਆਵੇ cos ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਬਣ ਜਾਣਾ cos ਇਨਵਰਸ 10 ਓਵਰ 102। ਇਹਨਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿੱਖੀ ਆ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ a ਔਨ b ਜਾਂ b ਔਨ a। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸਮ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।